Good morning everyone. Welcome to your biology class. So students, next questions डिस्कस करने से पहले let me tell you a story. ओके आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। तो एक बार एक जेंटलमैन थे और वो एक एलिफेंट कैंप से गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एलिफेंट कैंप के अंदर बहुत सारे एलिफेंट थे और उनको किसी भी चेन से टाई नहीं कर रखा था और ना ही किसी केज के अंदर उनको बंद कर रखा था। सिर्फ एलिफेंट के पैरों पे एक छोटी सी रस्सी थी जिससे उन्हें बांध रखा था। तो उस जेंटलमैन ने सोचा कि ये एलिफेंट अपना फोर्स लगा के इस रस्सी को इजीली ब्रेक कर सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो ये एलिफेंट इस रस्सी से क्यों बंधे हुए हैं, ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो जो उस एलिफेंट कैंप में ट्रेनर था उसके पास वो जेंटलमैन गया और उसने ये रीज़न पूछा कि भाई ये एलिफेंट इस रोप को, इस रस्सी को ब्रेक क्यों नहीं कर देते। तो उस ट्रेनर ने कहा कि जब ये एलिफेंट यंग थे, छोटे बच्चे थे, जब से इस सेम रोप से इनके पैरों को बांधा हुआ है और उस वक्त ये इस रोप को ब्रेक नहीं कर पाए। तो इनके मन के अंदर ये विश्वास हमेशा के लिए बैठ गया कि इस रोप को ये ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। तो अब देखिए जो कंडीशन हमारी कंट्री में और पूरी दुनिया में है और हम इस विश्वास के साथ इस कोविड-19 से लड़ रहे हैं कि हम जो इंडियंस हैं वो इसको हरा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को अपने मन में ये विश्वास पैदा करना है कि आप लोगों की जो नॉर्मल क्लासेस हैं वो चल रही हैं। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टडी वेल, वॉच ऑल द वीडियोज़। आपको सारे वीडियोज़ जो हैं वो वॉच करने हैं क्योंकि तभी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आएगा। इफ़ यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर नोटबुक्स from the given notes, it will not help you to understand any of the topic. अपने मन के अंदर ये विश्वास लेके आइए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सीबीएसई को टॉप करना है ना। तो आपको आप जब भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब आप अपने मन में विश्वास लेके आएंगे, सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे, डेली का काम डेली करेंगे। अब आप 24 आवर्स घर पे हैं, आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, so let's start with the questions given on the page number 110. So here is the first question. What are the component of the transport system in human beings? What are the function of these component? ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके क्या कंपोनेंट हैं और उन कंपोनेंट के क्या फंक्शन हैं। सो देयर आर two transport system present in our body. Number one is blood circulatory system, number two is lymph circulatory system. Two transport system are there, blood circulatory system and lymph circulatory system. Now what are the component of blood circulatory system? The component of blood circulatory system are blood, heart and blood vessel. Okay, what is blood? Blood is a red colored fluid connective tissue which transport oxygen, carbon dioxide, food, waste, hormone in our body and maintain our body temperature. Okay, now the muscular organ which is present in our thoracic cavity in between our lungs is the heart, which pump the blood. And the third component of blood circulatory system is blood vessels. Blood vessels are the tube through which the blood flows in our body. So there are two type of blood vessel, arteries and veins. Arteries carry blood away from heart, veins carry blood towards the heart. Arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. In artery, pulmonary artery is the exception, which carry deoxygenated blood, and in veins, pulmonary vein is the exception, which carry oxygenated blood. Now blood flows with high pressure in arteries and with low pressure in veins. Now second is the lymph circulatory system. So when blood flows through the blood capillaries are the fine branches of arteries and veins. So when blood flows through the blood capillaries, the pores present in the wall of the capillaries, some amount of plasma, protein
white blood cell escape into the intercellular space in the tissues and they form tissue fluid और lymph. जब blood capillaries से blood flow हो रहा है तो blood capillaries की walls में जो tiny pores हैं उनसे plasma, protein, white blood cells बाहर निकल के और cells के बीच में जो space है tissues के आसपास collect हो जाते हैं, उसी को हम lymph कहते हैं. Okay, so two components of lymph circulatory system are there: lymph and lymphatic vessel. Lymph flow in lymphatic vessel. Now what is the function of lymph? Lymph help to transport or exchange of material between blood and cells. Okay, the another function of lymph is lymph carries digested and absorbed fat from small intestine. Okay, so these were the component of transport system in our body. Now next question is, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? Mammal और bird में oxygenated और deoxygenated blood जो है वो separate करना क्यों ज़रूरी है? Because mammal and birds are warm blooded animal. To maintain their body temperature, to fulfill their high energy needs and to fulfill their oxygen demand, oxygenated and deoxygenated blood should be separated. Next question is, what are the component of transport system in highly organized plants? In plants, transportation is done by xylem and phloem tissue. Now what are the part of xylem? There are four parts of xylem. Xylem consists of xylem tracheates, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Xylem parenchyma help in storage, xylem fibers provide mechanical strength, and xylem tracheates and vessels are the two transporting elements of the xylem. ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट टू लास्ट ईयर आया था बेटा बोर्ड एग्जाम में. नेम टू वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट. तो उसका आंसर क्या होना था? जाइलम ट्रेकियार्ड्स एंड जाइलम वेसल. ट्रेकियार्ड्स ट्रांसपोर्ट वाटर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर इन फ्लावरिंग प्लांट. ओके, दी अनदर टिश्यू इज फ्लोएम. फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. जाइलम ने किसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया था? वाटर एंड मिनरल. फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा? फूड में. ठीक है, तो फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम के भी फोर पार्ट्स हैं: फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम स्केल्विनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स. सो फ्लोएम पेरेनकाइमा पता है हमें, इट हेल्प्स इन स्टोरेज. Phloem scalenchyma or phloem fibers, they provide mechanical strength. Now sieve tubes are the main food transporting element of phloem. ओके, जो फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है फ्लोएम में? सीव ट्यूब्स कर रही हैं. फ्लोएम का जो पार्ट सीव ट्यूब है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं. और द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लोएम इज कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? सो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. वाटर इज transported with the help of xylem tissue. So the xylem vessels and tracheates of root, stem and leaves are interconnected to form a continuous water conducting channel which reaches all parts of the plant. स्टेम, रूट, लीव्स के जो जाइलम वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं ताकि एक कॉन्टीन्यूअस चैनल जो है वो डेवलप हो सके और प्लांट में हर जगह वाटर जो है वो सप्लाई हो सके. Now, in plant we know tiny pores are present in the leaves and these tiny pores are called as stomata. Now from the stomata, the 99% of the water is lost in the form of water vapor, and due to this loss of water, a suction pull is created in the plant body. Transpiration से plant अपना maximum water लॉस्ट कर देता है जिसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल क्रिएट होता है. एंड दिस ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल help the water to move in the xylem. Okay, this is just similar to a
cold drink which moves up the straw when we suck up the upper end of the straw. हम कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रॉ के ऊपर एक सक्शन पुल लगाते हैं, उसको सक करते हैं, और बिल्कुल ट्रांसपीरेशन की वजह से प्लांट में भी वैसा ही एक सक्शन पुल लग रहा है. एंड विद द हेल्प ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स वाटर मूव्स इन द xylem. Now next question is, how is food transported in plant? Food is transported with the help of phloem tissue. Okay, food is prepared in the leaves, mesophyll cells of the leaves. From the mesophyll cells of the leaves, the food move to the sieve tube by utilizing energy or ATP. Now in the sieve tube, when the food comes into the sieve tube, the adjacent xylem cells give their water to the sieve tube. जैसे ही मीजोफिल सेल से फूड सीव ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है, सीव ट्यूब के आसपास जितने भी जाइलम सेल्स हैं वो अपना वाटर सीव ट्यूब को दे देंगे. ओके, अब जैसे ही वाटर सीव ट्यूब के अंदर आ गया तो क्या क्रिएट हो गया, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया. ओके, नाउ दिस due to this rise in the osmotic pressure, the food start move to the area of low pressure. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, मीजोफिल सेल्स में फूड प्रिपेयर हुआ, मीजोफिल सेल से फूड सीव ट्यूब के अंदर आ गया, सीव ट्यूब के आसपास जितने भी जाइलम सेल्स थे उन्होंने अपना वाटर सीव ट्यूब को दे दिया, और जैसे ही वाटर सीव ट्यूब में आ गया, सीव ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, और जो फूड है वो उस ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मूव करना स्टार्ट हो गया एनर्जी को यूज़ करते हुए. एंड द फूड इज़ मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया से फूड कहाँ मूव करेगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया पे, जहाँ कहीं पे भी फूड की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो दिस अलाउ द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट. Okay, these questions are clear. Now let's discuss the another question. So these are the question. Describe the structure and functioning of nephron. So nephron are cup shaped and tubular structures which help in filtration of the blood. Now glomerulus, basically there are three steps in the nephron: filtration, reabsorption and secretion. The impure blood is supplied to the nephron by the renal artery. Now when the blood flows to the glomerulus help in filtration, then blood goes to the PCT. Maximum reabsorption of useful material occur in the PCT. Then the filtrate passes to the loop of Henle, in which reabsorption is minimum. Only selective reabsorption take place or secretion take place in loop of Henle, and from loop of Henle it goes to the DCT. In DCT, secretion of ions to maintain the osmotic balance take place, and from the DCT, distal convoluted tubule, the filtrate or the urine goes to the collecting duct, and collecting duct will pass that urine to the ureter, and through the ureter the urine goes to the urinary bladder where urine is temporarily stored. Now next question is, what are the methods used by plants to get rid of excretory products? Plant कौन से method use करता है अपने waste को remove करने के लिए? तो हमने देखा है theoretical part में, हमने देखा था, discuss किया था, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज़ कर देता है. ठीक है, नाइट में स्टोमेटा के थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ कर रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा. दैट इज़ ऑल्सो दी वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन. एक्सेस वाटर इज रिमूविंग थ्रू दी स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय ट्रांसपीरेशन. ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखिए लास्ट टॉपिक है, यहाँ दिया हुआ है प्लांट में वैक्यूल हमने 9th में पढ़ा था. सो जो सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो प्लांट अपना वैक्यूल्स में बेटा स्टोर कर लेता है. ठीक है, वैक्यूल्स में अपना वेस्ट जो है वो प्लांट स्टोर कर लेता है. फिर जितने भी लीव्स हैं, लीव्स को फॉल ऑफ कर रहा है, फ्लावर्स को फॉल ऑफ कर रहा है, तो ओल्ड लीफ में भी प्लांट अपना वेस्ट स्टोर करता है, और जब वो लीव्स फॉल ऑफ होती हैं तो वो भी वेस्ट हो जाता है. प्लांट में हमने स्टेम में गम्स देखे हैं, गम्स, रेजिन्स. ठीक है, लेटेक्स हमने देखा है, वाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस
कई बार स्टेम को तोड़ने पे रिलीज होता है. सो प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, गम, टेनिन्स. ओके, एंड some substance are excreted into the soil by the roots. So ये मेथड थे जिससे प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है. ओके, नाउ वी कम टू दी चैप्टर एंड एक्सरसाइज. सो यहाँ पे कुछ MCQ हैं. किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन. तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है? ऑप्शन सी. किडनीज किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का. द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ऑप्शन ए. Autotrophic mode of nutrition require carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, all of the above. थर्ड का आंसर है डी, all of the above. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in the mitochondria. क्योंकि पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है CO2, वाटर और एनर्जी में, तो यहाँ पे आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट है हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी. फैट आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम lipase. Lipase break down fat into fatty acid and glycerol. Where does this process takes place? This process takes place in our small intestine. What is the role of saliva in the digestion of food? Saliva contain salivary amylase which break down starch into simple sugar. Okay, so about 30% of the starch is breakdown in our buccal cavity. What are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproduct? Necessary condition, दो condition है, sunlight and chlorophyll. Presence of sunlight and chlorophyll necessary condition है. रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और बाई प्रोडक्ट क्या है बेटा? बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है. नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Anaerobic takes place in the absence of oxygen. In aerobic respiration, food is completely break down. In anaerobic respiration, food is partially break down. Aerobic respiration में food completely break हो रहा है तो large amount of energy release होगी. एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड पार्शली ब्रेक हो रहा है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट CO2, वाटर एंड एनर्जी. एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. और एनारोबिक कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है. और एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी में हमारी मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ साइटोप्लाज्म में. नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ईस्ट. ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है बेटा. इसके अलावा जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस में. और इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एलोविलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एलोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दे provide about 80 meter square area for exchange of gases. What would be the consequence of a deficiency of hemoglobin in our body? हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है? हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. और उस ऑक्सीजन से क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. अब हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की सप्लाई हर एक सेल तक नहीं होगी तो हर एक सेल में जो एनर्जी है वो प्रॉपर अमाउंट में जो एनर्जी नहीं मिलेगी और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एनीमिया डिजीज़ है वो हो जाएगी और हम बहुत जल्दी थक जाएंगे. हमारी बॉडी की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी. डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग. फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. इट कंसिस्ट ऑफ pulmonary circulation and systematic circulation. What is pulmonary circulation? When blood flow from heart and lungs, it is pulmonary circulation, and when blood flows between heart and body cell, it is systematic circulation. Why is it necessary? To maintain our body temperature, to fulfill our high energy and oxygen demand, it is necessary.
ओके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम फ्लोएम, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जाइलम में वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे, फ्लोएम में जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा। जाइलम में वाटर को ट्रांसपोर्ट वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स करेंगे, फ्लोएम में सीव ट्यूब करेंगे। जाइलम इज़ मेड अप ऑफ मोर डेड सेल, फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ मोर लिविंग सेल। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कोहेसिव एडहेसिव फोर की हेल्प, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की हेल्प से से होगा। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होगा। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से होगा। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एलोविला इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। सो देखिए, एलोविलाई जो हैं वो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। नेफ्रॉन किडनी के अंदर कप लाइक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। एलोविलाई इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेफ्रॉन फिल्टरेशन का काम कर रहे हैं, फिल्टरिंग द ब्लड एंड रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दी ब्लड। तो स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो चुका है, इसका फंक्शन भी। यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यूटी के लिए अच्छे से पढ़ें, सारे वीडियोस देखें, किसी भी हेल्प बुक से आंसर्स कॉपी ना करें। जो आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उन्हीं से आंसर लिखें। कहीं पे कोई भी डाउट है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से, जो भी आपके क्लास में बायोलॉजी ले रहा है, उससे ये डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, and please be safe and study well. All the best for your UT. Thank you.